السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا۔ تو چلیے جانتے ہیں اس سے آگے کیا ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت کم عمر تھے مگر سچائی کو پہچان گئے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے اور لوگوں میں بہت عزت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خود اسلام قبول نہیں کیا بلکہ کئی لوگوں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچایا۔ ان کی دعوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی عظیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابتدا میں مسلمان اپنے ایمان کو چھپا کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ مکہ کے کفار اسلام کی سخت مخالفت کرتے تھے اور وہ سخت اسلام کے مخالف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو محبت، صبر اور نرمی سے اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق اور سب انسان برابر ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلنے لگا، کفار مکہ غصے میں آنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ کسی کو مارا جاتا، کسی کو بھوکا رکھا جاتا اور کسی کو صرف اس لیے ستایا جاتا کہ وہ اللہ پر ایمان کیوں لے آئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو محبت، صبر اور نرمی سے اسلام کی دعوت دیتے۔ مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی دین کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ظلم انہیں اسلام سے دور نہ کر سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام خاموشی سے لوگوں کے دلوں میں اتر رہا تھا۔ لوگوں کا چھوٹا سا قافلہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے لیے روشنی بننے والا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام مکہ کے گلی کوچوں میں پھیلنے لگا۔ لوگ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے، قرآن کی آیات سنتے اور ان کے دل بدلنے لگے۔ لیکن جو اسلام پھیلتا گیا، کفار مکہ کا ظلم بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ مسلمانوں کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو غریب تھے یا جن کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا، انہیں بہت زیادہ ستایا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے، مگر وہ پھر بھی صرف ایک ہی آواز بلند کرتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب دیکھ کر بہت غمگین ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات سنو گے؟ سب نے کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो। ये सुनकर कुछ लोग हैरान हो गए और कुछ सख्त गुस्से में आ गए। खास तौर पर अबू लहब ने बहुत मुखालफत की और बदतमीजी से बात की। उसके बाद कफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते, कभी शायर और कभी नाउज़ बिल्लाह दीवाना कहते। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हबशा हिजरत कर गए और उन्हें हबशा हिजरत करने की इजाज़त दी गई। वो अपने घर, अपना माल और अपना वतन छोड़कर सिर्फ अपने दीन की हिफाजत के लिए निकल गए। हबशा के बादशाह निजाशी ने मुसलमानों की बात सुनी और उन्हें पनाह दी। ये इस्लाम की तारीख की पहली हिजरत थी। इधर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मायूस नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि अल्लाह का दीन एक दिन पूरी दुनिया में फैलेगा। और वाकई ही वही छोटा सा काफिला जिसे कभी मक्का की गलियों में कमजोर समझा जाता था, बाद में पूरी दुनिया के लिए हिदायत और रोशनी बन गया। फिर वक्त गुजर गया और कफारे मक्का का जुल्म पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी इस्लाम की दावत देते, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, रास्तों में कांटे बिछाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते। मगर इन सब मुश्किलों के दरमियान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में लगे रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बहुत गमगीन वक्त आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़े सहारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। वो अगरचे इस्लाम कबूल नहीं कर पाए थे, मगर हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे। उसी साल हज़रत खदीजा भी दुनिया से रुखसत हो गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार थी। हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तसल्ली देती, हौसला देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती। ये दोनों सदमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़े थे। इसी वजह से इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इन मुश्किल हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए ताकि वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दें। मगर ताइफ वालों ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, बल्कि बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव खून से भर गए। इस तकलीफ के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआएं नहीं दी, बल्कि अल्लाह से फरमाया कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे क्योंकि ये नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए एक अजीम मौजूदा अता फरमाया, जिसे हम वाक़िया मेहराज कहते हैं। एक रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। फिर वहाँ से आसमानों की सैर करवाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर देखे, मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की और अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए नमाज का अजीम तोहफा मिला। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी तसल्ली और अल्लाह ताला की खास निशानी था। इसके बाद इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता मक्का से बाहर भी फैलने लगा। मदीने के कुछ लोग हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उन्होंने कुरान सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो लोग वापस जाकर मदीना में इस्लाम का पैगाम फैलाने लगे। और फिर वो वक्त करीब आने लगा जब मुसलमानों को एक नई सरजमीन मिलने वाली थी, जहाँ इस्लाम आज़ादी के साथ फैल सके। हम मदीना से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी। वो हर साल हज के मौके पर मक्का आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुतबा मुलाकात करते।
उन्होंने वादा किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे और इस्लाम का साथ देंगे। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म मिला। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता अपना घर, माल और ज़मीन छोड़कर मदीना जाने लगे। वो सिर्फ अल्लाह और उसकी दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। कफ़ारे मक्का ये देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना पहुंच गए तो इस्लाम बहुत ताकतवर हो जाएगा। तब कुरैश के सरदारों ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरैश की साजिश की खबर दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद रात के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से निकल गए। गफ्फार आप सल्लल्लाहु के घर को घेर रखा था, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गारे शोर में जाकर छुप गए। कुफार उनका पीछा करते हुए गार के थाने तक पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फिक्र हुई कि अगर कुफार ने नीचे देख लिया तो हमें देख लेंगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला के हुक्म से गार के दरवाजे पर मकड़ी ने जाला बना दिया और एक कबूतर ने वहां घोंसला बना लिया। कफ़ार ने ये देखकर समझा कि यहाँ कोई नहीं आया होगा और वापस चले गए। चंद दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना के लोग बेचैनी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। रोजाना बच्चे, बूढ़े और औरतें शहर के बाहर जाकर रास्ता देखते। फिर वो मुबारक दिन आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। मदीना खुशी से जगमगा उठा। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। बच्चे इंतजार कर रहे थे और इंतजार नाते पड़ रहे थे और हर शख्स चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ठहरे। अब इस्लाम सिर्फ छुपकर बढ़ा जाने वाला दीन नहीं रहा था और ना ही छुपकर पढ़ा जाने वाला दीन रहा था, बल्कि एक मजबूत उम्मत बनने की तरफ बढ़ रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाकया आप ज़रूर सुनिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।